Hello everyone, welcome to Learn Online, and this is our session on SSC CGL GK questions. Yes, and ये सेशन कंडक्ट किया जा रहा है मेरे द्वारा, दैट इज प्रवीण जाधव. अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस ऑन एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज डू वॉच देम एंड दे हैव बीन मेड अवेलेबल टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट, and also spread a word about the sessions that we are conducting. And if you're finding these videos useful, agar aapko ye labhdayak lag rahe hain, to please do not forget to like the video. Now let's get started with today's session. आज का session क्या बोल रहा है? General knowledge का है. And हम लोग क्या करते हैं आपको पता है? We take a previous year question papers like we are doing in this case. यहाँ पे हमने ये सब questions किए हैं पहले ही. हमने जहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया था और उनको रिमेंबर कैसे करना है, ये सब क्वेश्चंस हो चुके हैं फ्रेजर, और हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस किया था हमने. यस, एंड वी हैड कंप्लीटेड 10 क्वेश्चंस इन. हमने 10 क्वेश्चन खत्म किए थे 2019 के एक शिफ्ट के पेपर में. हम लोग 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. एंड आपने ये भी नोटिस किया होगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि लूसेंट जीके बुक के आधार पे हैं. दे आर ऑन द बेसिस ऑफ द लूसेंट जीके बुक. ऑल if to make the most out of the questions that are being provided to you, what you have to do is आपको क्या करना है, आपको उन पेजेस को पढ़ना है. फिजिक्स का सेक्शन पढ़ना है आपको जीके लूसेंट जीके का, और फिर इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है आपको. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द फिजिक्स सेक्शन इन जीके लूसेंट बुक एंड देन ट्राई टू आंसर the questions that are there. And if you have already answered it once in the telegram में आपने ऐसे ही तुक्का मार दिया है और वापस नहीं कर पा रहे हो, तब हमने even that, for that I have provided you a link to my website where you can go answer the link by registering yourself in the link, registering yourself on our website, and you can access the quiz. आप लोग को quiz ले सकते हैं. And remember guys, quizzes are the most important thing when it comes to your preparation in GK. Yes, soon we'll also be coming up with daily current affairs questions for you. That will also be done by me. So let's get started with our today's session. Now, पहला question. ये question SSC CGL से ही है, and this is from SSC CGL. What does it say? Article dash of the Constitution of India gives the Election Commission the power to supervise elections to the Parliament and state legislatures. कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन को ये पावर्स देता है? तो आपका ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दीजिएगा. एंड योर ऑप्शन शुड बी आर्टिकल 324. इफ योर ऑप्शन वाज 324, आप सही हो. वरना देखिए, चलो देखते हैं आर्टिकल 324 के बारे में और थोड़ा सीखते हैं. यस, यहाँ पे देखिए, मैंने आपको whatever the question we had previously, I've given some supporting questions. थोड़े questions edit करके आपको बनाए हैं ताकि आप ज़्यादा समझ सको इसके बारे में. तो इन questions को solve करने के बाद आपको एक adequate knowledge होगा कि अगर आपको similar question तो नहीं आएगा, आसपास वाला question ही आएगा. तो आसपास के सारे questions को मैंने cover करने की कोशिश की है. Let's have a look. क्या है? Power of superintendent direction and control of elections of which of the following is vested in election commission? Option A, parliament, municipalities in state, office of the president, office of the vice president. Quickly आप आंसर अपना लिख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा. ऐसे ही बस देख के मजा नहीं लेना है वीडियो का. यस यस, कितने लोगों ने ऑप्शन ए, सी और डी मार्क किया? ए, सी और डी जिसने मार्क किया उन्होंने गलत मार्क किया. यस, which of the is vested मतलब power of superintendence, direction and control of election. Which of the following is vested? Parliament, office of the president and office of the vice president of India is vested in election commission. कौन सा not vested है? Municipalities in the state. यहाँ पे ये question और not vested कर देता हूँ. अगर यहाँ पे इसको not vested कर दूँ तो ये सही हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन. यस, नॉट वेस्टेड है. यहाँ पे नॉट लिख दीजिएगा बस. यहाँ पे नॉट हो गया तो आपका क्वेश्चन आपके लिए सही हो गया. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेस्टेड? म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द स्टेट का वो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न्ड विद इलेक्शंस ऑफ
अगर ऐसा पूछा जाए, इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न्ड विद इलेक्शंस ऑफ, कौन सा? पंचायत का करता है क्या? नो, इट डजंट डू। म्युनिसिपैलिटीज ऑफ द स्टेट, नो, हमने देखा है यहाँ पे वो नहीं करता है। नो। विधानसभा, विधानसभा भी स्टेट में आ गया, नो, इट इज नॉट। इसका विधानसभा का कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। यस, यहाँ पे कौन आता है? स्टेट लेजिस्लेचर इज द ओनली ओनली करेक्ट ऑप्शन। Okay, which of next question? Let's have a look at the next question. Which of the following is not one of the functions of the election commission? Which of the following is not one of the functions of the election commission? The question says what? Decides on the number of polling booths? Yes. कौन decide करता है? Election commission decide करता है. Fixes election program dates? Yes, it does. Declaration of results? Declaration of results? Yes. ये भी election commission ही करता है. तो गलत आंसर कौन हो गया? Which one of them is not the function of election commission? It gives final decision on all electoral matters, including related to disqualification of the members. This is not done by election commission alone. This is done by the President of India in advice. President of India in advice taken by whom? Governor. Advice taken by the governor of the state. Yes. Now, let's go to the next question. यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इज कंसर्न्ड विद द इलेक्शंस ऑफ, आप लोगों ने शायद पॉइंट आउट कर लिया होगा, स्टेट लेजिस्लेचर और विधानसभा, ये भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। विधानसभा यार पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का, यस और नो? विधानसभा में कौन स्टेट लेजिस्लेचर में कौन से होते हैं? एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। So it is a part of it. So election commission is concerned with the elections of state legislature and विधानसभा। पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शन कमीशन नहीं रेस्पॉन्सिबल है, बस इतना याद रखना है आपको। मैंने दो डिफरेंट टाइप में देने के लिए क्वेश्चन को देने के लिए ट्राई किया था ना। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यस, क्वेश्चन क्या बोलता है? डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस रिकेट्स डिसीज। डेफिशिएंसी के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम इन डिटेल सबको डिसाइड करेंगे, लेकिन आपका आंसर मैं पहले जानना चाहता हूँ। आई वांट टू नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेस रिकेट्स। नाउ लेट्स हैव अ लुक और क्या क्या आता है। विटामिन डेफिशिएंसी से जो भी डिसीजेस रिलेटेड है उनको एक बार देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द डिसीजेस रिलेटेड टू विटामिन डेफिशिएंसीज। Vitamin A deficiency causes night blindness. Vitamin B1 deficiency causes beriberi. Beriberi में क्या होता है? Beriberi में दो टाइप है। There are two types in beriberi. One is wet beriberi and the other one is dry beriberi. In dry beriberi there is loss of muscle paralysis, आपको याद रखना है, जो कि एक मेजर सिम्टम है। और वेट बेरीबेरी में आपको याद रखना है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट रिलेटेड इश्यूज। ड्राई बेरीबेरी में नर्वस सिस्टम इशू होता है, और नर्वस सिस्टम की इशू की वजह से, नर्वस सिस्टम की पैरालिसिस, नर्वस सिस्टम के इफेक्ट होने की वजह से आपको मसल पैरालिसिस भी होता है। बट ज्यादा जानलेवा कौन सा है? विच इज मोर लाइफ थ्रेटनिंग इज वेट बेरीबेरी इज मोर लाइफ थ्रेटनिंग। ओके। विटामिन B2, विटामिन B2 से क्या होता है? रिटार्डेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ होता है, या बैड स्किन। ओके। विटामिन B12, विटामिन B12 आपको दो जगह पे जो जगह पे दिखाई देगा। एक तो है विटामिन डेफिशिएंसी में, दूसरी है आयरन मिनरल डेफिशिएंसी में। यहाँ पे देखिए, विटामिन B12 के कमी से हमको एनीमिया होता है। एनीमिया मतलब हमको पता ही होगा, ऐसे आंखें खोल के देख लेते हैं कई लोग कि खून कम है तेरे में, ऐसे बोल देते हैं देख के, कुछ विज्ञानी होते हैं। हाँ, लेकिन वो किसकी वजह से होता है? वो होता है विटामिन डेफिशिएंसी B12 के कम होने से, या फिर एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। और आयरन एक मिनरल है, विटामिन B12 एक विटामिन है, B12 एक विटामिन है। ओके। विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी causes scurvy. Scurvy, you might have heard of scurvy in which there is bleeding gums. Bleeding gums होता है, ये जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है। ये क्यों होता है? This is due to vitamin C deficiency.
Vitamin D deficiency causes rickets. Vitamin D deficiency causes rickets, and vitamin K deficiency causes excessive bleeding due to injury. Excessive bleeding due to injury in vitamins is caused due to vitamin K. Whereas आपको अगर genetically पूछा जाए, absence of factor 8, blood clotting factor 8 also causes excessive bleeding. आपको याद रखना है factor 8 also causes excessive bleeding. Okay, now in mineral deficiencies, calcium अगर कम है बॉडी में तो क्या होगा, brittle bones disease बोलते हैं इसे, और excessive bleeding भी होता है इसकी वजह से. Phosphorus, the deficiency of mineral phosphorus causes bad teeth and bones. Iron deficiency, we have already seen that it causes anemia. Iodine deficiency is we all know iodine deficiency से क्या होता है, goiter होता है. Goiter कहाँ पे होता है, mainly near the thyroid gland enlargement. आपका गला, the patient's throat यानी गला जहाँ पे होता है वहाँ पे मोटा सा एक लंप बन जाता है जो कि थायराइड ग्लैंड के सूजने से होता है. यस, आयोडीन हमको हाउ इज आयोडीन गोइंग इनटू आवर बॉडी ऑन डेली बेसिस? इट इज गोइंग इनटू आवर बॉडी इन इंडिया थ्रू सॉल्ट. सॉल्ट में आयोडीन है क्या? आपके नमक में आयोडीन है ऐसे नहीं पूछते, लेकिन होता है सबके यहाँ पे. अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहाँ पे सॉल्ट में आयोडीन नहीं मिक्स करता है. ये गवर्नमेंट का रेगुलेशन है कि आयोडीन शुड बी मिक्स्ड इन सॉल्ट. इन यूरोपियन कंट्रीज मोस्टली इट इज मिक्स्ड इन ब्रेड, क्योंकि वहाँ पे लार्जली हर कोई ब्रेड कंज्यूम करता ही है. टू अवॉइड द occurrence of the disease goiter, we Indian government has regulated that there must be certain portion of iodine in salt. Okay, now copper mineral deficiency से we get there is a loss of appetite. मतलब आपके भूख लगता ही नहीं है. लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगता नहीं है आदमी को. और रिटार्डेड ग्रोथ अगर कॉपर डेफिशिएंसी हो तो इनसे ये चीजें होती है. मैं द लिंक फॉर दिस पेपर प्रेजेंटेशन, ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं, जो अगर मेमोराइज करना चाहते हैं, यू विल हैव टू मेमोराइज इवन आफ्टर दिस क्लास, विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहां से ये ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ. They are located in the state of. Answer quickly. कोई आंसर कर सकता है? Yes, those of you answered Madhya Pradesh. You are absolutely right. Now, let's have a look at few of important temples. देख लेते हैं यहाँ पे. महाबोधि टेम्पल कहाँ पे है? बिहार में है. And I would suggest आप जो भी यूनेस्को सर्टिफाइड, यूनेस्को लिस्ट में जो भी आ चुके हैं टेम्पल्स और कल्चरल हेरिटेज साइट्स, इन सबको मेमोराइज करें. there are so many temples, बहुत सारे temples हैं. सारों को तो आप मेमोराइज नहीं कर सकते. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नहीं होगा. इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. बट एटलीस्ट दैट यू हैव टू डू इज यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड साइट्स को आपको सबको मेमोराइज करना है. यस, सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन गुजरात. वैष्णव देवी टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड केव टेम्पल. ओके, अमरनाथ टेम्पल इज इन जम्मू एंड कश्मीर. विरूपाक्षा टेम्पल इज इन कर्नाटका. ये again it is located in Hampi, which is a UNESCO site. Gomteshwara temple Karnataka. Khajuraho temple Madhya Pradesh. Konark Sun temple Odisha. Jagannath temple भी ओडिशा में ही है. Yes, the National Board of Micro, Small and Medium Enterprises meets once every dash months in a year. ऑप्शन दिया गया 2, 6, 3 और 9. योर ऑप्शन, आपने कौन सा चुना ऑप्शन? If you have marked the answer as to be 6, then you are right. यहाँ पे 2, 6, 3 और 9 के जगह पे 6 के जगह पे वो दे सकता था बाई एनुअली. बाई एनुअली का मतलब क्या होता है? ट्वाइस अ ईयर. अगर साल में 2 बार किया जा रहा है, इफ ट्वाइस अ ईयर, देन इट विल बी कॉल्ड बाई एनुअली. If it is being done, let me write it down for you here. Give me a second. Yes, अगर 6 महीने में 6 मंथ्स में एक बार हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड बाई एनुअली. अगर वंस इन अ ईयर हो रहा है तो इट इज कॉल्ड एनुअली. ये तो पता है हमें, वी नो दिस. वंस अ ईयर. ट्राई एनुअली मीनिंग
It is done every 3 months. Every 4 months. Every 4 months होता है ट्राइएंगली, मतलब आपको 12 महीने जो होते हैं उनको 3 से डिवाइड करना होता है, तो आपको 4 मिलेगा। एवरी 4 मंथ्स होता है। यस। एंड क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? आप क्या करोगे क्वार्टरली करने में? यस, 12 महीने को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो एवरी 3 मंथ्स हो गया क्वार्टरली। अगर ऑप्शन में आपको ये भी दिया जाता तो आपको मार्क करना पड़ता बाई एनुअली। यस, समझ रहे हैं आप? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड? यस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, ये हाईएस्ट, लोएस्ट, फर्स्ट, ये सब सुपरलेटिव्स काफी पूछे जाते हैं। आपको जितने हो सकते हैं उतने आपको मेमोराइज करने हैं। अगर हम सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको कवर करते करते वी विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ देम, बट स्टिल यू विल हैव टू कवर, यू विल हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ देम एज वेल। तो देखिए, द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स रखे हुए हाईएस्ट पीक्स के। हाईएस्ट पीक्स, लॉन्गेस्ट रिवर, ये सब आपको मेमोराइज करने हैं। हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज K2 or also called Godwin Austen. The next one is Kanchenjunga. Next is Nanda Devi. उसके बाद आता है कामेट। आपको फर्स्ट 3 और 4, 3 से 4 आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। जो भी सुपरलेटिव्स है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ऐसे सब, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ऐसे सभी आपको याद करने होंगे। ओके। वराकल, Chavara, Chavakad, and Nataki are the beaches in the state of. Are the beaches in the state of? Anyone who can mark them? Anyone who is from the southern part of India? अगर कोई साउथ इंडियन देख रहे तो they can easily mark it, and the answer is Kerala. The answer is Kerala. आपको confusion तो ये these two states you would have eliminated easily. And trust me guys, everyone, if there is, if you are able to eliminate 2 options out of the 4 options, अगर 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो अगर आपको थोड़ा भी कॉन्फिडेंस है तो यू शुड गो विथ आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में अगर 2 ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तब आप तुक्का मार रहे हो, नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ, आई थिंक इट इज केरला, बट यू आर एबल टू एलिमिनेट 2, then 50-50 अगर चांस बन रहा है तो you should take that risk of answering that question, but it should not be done oftenly. जब बार बार नहीं करना है, once in a while you can do it. Okay. Who was the first woman judge of the Delhi High Court? Who was the first woman Delhi High Court? Superlatives आ रहे हैं, काफी superlatives पूछे जा रहे हैं। First woman was Leela Seth. Leela Seth was the first woman judge of Delhi High Court. Now, फर्स्ट में थोड़ा देख लेते हैं, जैसे कि मैंने सुपरलेटिव्स बोला उसमें फर्स्ट वाला देख लेते हैं कुछ यहाँ पे। फर्स्ट वुमेन सीएम वंती सुचिता कृपलानी। यस। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट। अगर आपको पूछा जाए, इफ यू आर आस्क्ड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी हु वाज एन इंडियन, देन इट विल बी, कौन होगा? दैट विल बी सरोजिनी नायडू। फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, बिचेंद्री पाल। Miss World, first Indian who was Miss World was Rita Faria. अगर Miss Universe पूछा जाए, then you must know that it is Sushmita Sen. Yes. Now, first female pilot of IAF. Yes, it is भावना कांत। अगर आपने स्टडी स्टार्ट कर दिया है तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे अगर आप कर रहे हैं तो भावना कांत आपको आंसर पता होना चाहिए। यस। Who amongst the following succeeded the Mughal throne in the year 1556? 1556. Who succeeded the throne? Anyone who would like to try? जल्दी से आंसर अपना रिजर्व कर लीजिए। Yes, the answer is Akbar. And the answer is Akbar. Yes. Now, have a look at it. There is one small trick to memorize this. मैंने ये ऑनलाइन निमोनिक लिया है, सम वेबसाइट, आई डोंट रिमेम्बर, बट ऐसे निमोनिक्स आपको काफी मिल जाएंगे। आपका इंटेंशन गोल ये होना चाहिए कि मुझे काम, आपको काम से मतलब होना चाहिए, मैं सीख रहा हूँ कि नहीं। आप कहाँ से सीख रहे हो, इट डजंट मैटर, बट कीप लर्निंग। क्या यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे देखिए, भाजी सब्जी, भाजी सब्जी लिखा हुआ है।
भाजी और सब्जी दोनों एक ही मतलब है। यस, भाजी और सब्जी। लेकिन भाजी और सब्जी से हमारा क्या बनता है? बी से बनता है बाबर। व्हाट आर वी डूइंग हियर? बी इज बाबर, एच इज हुमायून, ए इज अकबर, जे आई, भाजी में जे आई इज जहांगीर। They are in their order. They are in their order. 1526 to 30, Babur, Humayun, 30 to 56. And in 56, who came up? Akbar came up. Akbar came up. अब सब्जी अकबर आ गया, भाजी हो गया, हाँ, सब्जी देख लेते हैं। शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। यस, अगर दिस आफ्टर हियर सब्जी के एस ए के बाद, दिस इज द एंड ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ मुगल्स। This is the end of the golden era of Mughals in India. And औरंगजेब के राज के बाद जो भी हुआ, there were not much competent leaders. Yes, no. ये भाजी सब्जी निमोने का आपको याद होना चाहिए सबको। Yes. Which of the following is not a vocal form of Hindustani classical music? Now, अगर आप कल्चर में पढ़ते जाएं, like if you start reading culture of India, then there will be lot of classical dances जो हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। yes, there will be folk dances, there will be instruments used there। यहाँ पे आप अपना आंसर सोचते रहिए वैसे ही। there will be lot of them, percussion instruments कौन से हैं, ये सब बहुत सारा उसमें प्ले करता है रोल। ये बहुत वास्ट है और इट इज नॉट वर्थ योर टाइम। बट अगर कॉस्ट बेनिफिट देखा जाए तो आप इन सबको याद तो नहीं कर सकते, मेमोराइज, यू कैन नॉट मेमोराइज देम, बट प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है वहां पर आप देख सकते हो। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? पखवाजा। पखवाजा एक छोटा सा ड्रम होता है, अगर आपको पता होता है, ऐसा सा एक ड्रम होता है। इट इज नॉट अ वोकल फॉर्म बट इट इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। वो एक परकशन इंस्ट्रूमेंट है। यस, ऐसा सा होता है। I'm really bad at drawing, but I hope you understood what this pakwaja instrument is. Okay, now let's move to the next question. What do we have here? Minimum support price. Minimum support price is recommended by. This question has been asked frequently. हर बार हर दूसरे तीसरे साल पूछ लेता है। अगर आप श्री राम IAS की बुक लेके पढ़ोगे तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आपको दूसरे या फिर तीसरे पेज में मिल जाएगा। जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा। इट इज डन बाय हु? द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। आंसर हियर इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। नाउ इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं। द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, is since 1985। अर्लियर इसका नाम क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्लियर बिफोर 1985 it was agricultural prices, named as agricultural prices. Since 1985 it has been named as Agricultural Prices Commission, came into existence in 1965। yes, yes, 1956 से इसका नाम था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1965 में, तब उसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन। 1985 के बाद इसको बुलाया गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। Dash is the oldest golf course outside United Kingdom. This is also a 2019 question from SSC CGL। यहाँ पे मैंने जैसे बोला फैक्ट्स एंड फिगर्स तो नहीं पूछे जाते हैं, पर फैक्ट्स और सुपरलेटिव्स काफी पूछे जाते हैं, तो आपको जितना हो सके उतना मेमोराइज करना चाहिए। एंड यार आंसर इज रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता। यस, this this brings us to an end of our 10 questions that were given to you in the uh, previous after the yes, in the PDF that was passed to you on Telegram। ऐसे काफी और आएंगे and we'll be in touch with you। If you need anything more than what is happening here, please do let us know on my any of my social media handles or in the comment section in the YouTube। We'll be more than happy to help। Well guys, this was a quick session on general awareness, previous year question papers। I hope you learned and enjoyed it। I hope to see you soon. Till then, take care.